This industry was struggling. There was huge NPAs, there were losses, and public sector banks in particular, they were under heavy criticism of public. There was a lot of debate. Why should government capitalize it? Why should good money be thrown after bad money? So, in such a scenario, leading the bank, and because the State Bank is the largest bank in the country and very heavy into corporate banking, so you're not leading State Bank, but in fact you're leading the entire banking industry. So the idea came, and then about the structure of the book, there were a lot of discussions whether it should start with my autobiography or what. So I decided that let me divide the book in three parts. So first part is when you read the book, it is all about current events at that time. As I said, that the industry was grappling with a lot of non-performing loans. Yes Bank, it was a burning issue in 2020. Jet Airways grounding, that was another topic. Then we had huge NPAs in the steel industry, in power segment. First section, then I devoted to the, at that time, what were the current topics, and where at the airport or wherever there was a conversation, I was asked question, what will happen to Yes Bank, what will happen to Jet Airways, what will happen to the banks, whether they will survive, whether depositor money is safe, whether when ILFS and the one housing failed, whether we are witnessing a Lehman Brothers movement in India. So I thought that the best way is that I put all questions and answers in place. And then part two was about the State Bank. What were the changes which were made? It included handling of demonetization. That was a big event. Then on a one single day, 6 banks got merged in the State Bank of India. That was 1st April 2017. I was not chairman at that time. I was managing director, but because I was managing director for the retail banking and branch banking, so entire merger also that had to be handled by me, and later on and then the digitization, because bank was facing huge challenge about how do we attract younger people, new generation to State Bank of India. And then they gave birth to what popularly today is known as YONO, which I think now everybody knows. And in fact, I feel very proud that YONO today is the largest digital bank in the world. No bank has created something like this. So that was digitization, and then many other changes were brought in State Bank of India. And third part I have touched about myself. And there was also a debate with many friends with whom I shared the draft, whether that should be first chapter, that should be the last chapter. And then I decided no, I will keep it at the end. Because then what happens that there are different types of audience. Somebody who is interested in current macroeconomic situation, banking, they can just read section 1 and be done away with it. Somebody, because there are so many employees and people who may be interested in the story of a state bank, what happened during that time. So they can go to section 2. And then if somebody is also interested in knowing about me, then they can read section 3. So obviously in this book, this was I think a very good organization of the book, in the sense that you could start from section 3 or section 2 or section 1. You can read it from the end or from the beginning, it won't make a difference. And that is what exactly happened, that the people who know me personally know, or who are neighbors or who are from the State Bank, they first read section 3. Because there is a natural curiosity to know about that, about your early life and this thing. And the people who wanted to know about the State Bank, they went to section 2, and those who wanted to know about Yes Bank, Jet, and back to it, they read. So that was that way it was like something for everybody in that book. And about the title, The Custodian of Trust,
The suggestion, of course, many suggestions came from the publisher. But the idea was, and later on I felt, that the title could as well have been the Custodians of Trust. Because the Custodian of Trust means it gives an impression that an individual. But the fact is that it is about the bank and the banks. And banks are the custodian of trust because people have so much faith in the banks that they put all their life savings, their money with the banks. So if I ask you, give me 1,000 rupees, you will not give me. But in State Bank, you go, you will put all your entire life savings in the State Bank. So this is what? This is trust. And the banks are, in that sense, the custodian of trust. And I am happy that that title, it came out to be a very apt title for this. So this is my opening remark. But if any particular section or anything is of interest, I can throw light on that. And सर ये जो 3 भागों में किताब लिखा गया वो उसका संरचना जो है ये अलग प्रकार के हैं। तीसरा जो भाग है पार्ट 3 जो है द पार्ट 3 में इन्होंने अपनी खुद का जर्नी लिखा जो अपना प्रवास है एसबीआई से पहले और एसबीआई को कैसा इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने कैसा पीपल फ्रेंडली बनाया और ट्रस्ट वर्दी बनाया। इसमें इन्होंने एक मंगल पांडे का लिखा है, मैंने ठीक नहीं पढ़ा तो मैं चाहता हूँ वो मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट पर्सन टू, जो वो पहले व्यक्ति थे जो स्वातंत्र के लिए सबसे पहला लड़ा उन्होंने किया और इन्होंने भी वो साइट किया तो हमें लगा इन्होंने एक दूसरा फ्रीडम के लिए पूरे किताब में स्ट्रगल किया है। वो जो दूसरा फ्रीडम है वो फ्रीडम है एक कॉलोनाइजेशन। उस वक्त मंगल पांडे ने कॉलोनाइजेशन के खिलाफ एक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाया और इनका जो किताब में हमने थर्ड पार्ट ठीक से पढ़ा उसमें लगा इन्होंने एक दूसरा इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन जो चल रहा है यूएस और चाइना एंड अदर सुपर पावर का चल रहा है इसके अगेंस्ट इन्होंने किया है। ये जो हम चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि ये किताब में सडन मंगल पांडे का शब्द आया है आई थिंक 200 पेज पे। नहीं, तो मैं चाहता हूँ जरा, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो मेरी जर्नी है और जहाँ मैं मेरठ से आता हूँ और मेरठ के लिए मंगल पांडे जो है वो एक बहुत बड़े आइकन है। जहाँ हमारा घर है उस मेरठ में पुराने शहर में, तो वहाँ पे मंगल पांडे की मूर्ति लगी हुई है। और इसलिए जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मैंने कहा सबसे पहले जो लिखना चाहिए, जो इतना बड़ा आइकन है मेरठ के लिए क्या देश के लिए, और जो आपने कहा कि स्वतंत्र जो संग्राम है उसमें जो योगदान था मंगल पांडे का, तो बुक की शुरुआत करना और मेरठ शहर का परिचय जो है उसको मैं रावण से तो शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि मेरठ जो है वो रावण की ससुराल है। बिकॉज इट्स ओरिजिनल नेम इज़ मय राष्ट्र एंड मय वॉज मंदोदरी's फादर। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मय राष्ट्र से करते रावण से करते तो शायद अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने कहा कि राइट आइकन चुनना चाहिए। और मंगल पांडे का जो है इस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ रेफरेंस है। आपने कॉलोनाइजेशन की बात की, वो एक भारत का मैं कहता हूँ कि डार्क एज से तुलना करी जा सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो रहा है इतिहास में, भले ही हम कुछ भी कहें, लेकिन मुगल रूलर्स कभी भारत की संपत्ति को लूट के नहीं ले। दैट वेल्थ रिमेन्ड इन इंडिया, whereas Britishers they drained us completely। और जो भारत में इतनी गरीबी और ये सब जो नज़र आता है ये मुगल्स की देन नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। स्टेट बैंक कहने के लिए तो ये कॉलोनाइजेशन का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि जब 1806 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में उन्होंने अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस बैंक की स्थापना करी। उसके बाद फिर ये चेन्नई में, बॉम्बे में और इस तरह से प्रेसिडेंसी बैंक्स कहलाते थे।
and they were all established by Britishers to serve their imperialistic purpose and design. In fact, 1921 में जब ये merge हुए बैंक, तो उसका नाम भी था Imperial Bank of India. It was only in 1955, 1st July, that under an act of parliament, the State Bank of India got created. And it has not looked back since then. जो भी कंट्री में फिनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स हैं, मास बैंकिंग है, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स की हों, सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, स्टेट बैंक का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल उसमें आज भी है. और जो 1955 में जो एनविजन किया गया था कि रूरल मासेस, रूरल बैंकिंग, रूरल क्रेडिट, इनको सर्व करने के लिए और इन नीड्स को पूरा करने के लिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक की ज़रूरत है. तो स्टेट बैंक वाज द फर्स्ट बैंक अंडर दैट कैटेगरी. और उसके बाद फिर 1969 और 1980 में 2 फेसेस में बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ. तो जब भी मेरे से प्रश्न पूछा जाता तो मैं कहा भाई स्टेट बैंक का जो ओरिजिन है या जो इसके पीछे थॉट प्रोसेस था, that was always to serve the masses. लेकिन by nature, by its size, it does well both. It does mass banking and it does corporate banking. और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ एक बैंक ज़ीरो बैलेंस या 500 रुपये बैलेंस या 100 रुपये बैलेंस वाले 30 करोड़ खाते हैंडल करता है और 1 लाख करोड़ का लोन भी आईओसी और बड़े बड़े टाटा ग्रुप या उनको देता है. तो इस तरह का बहुत बैंक से या तो वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग या रिटेल बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन ये अपने तरह का एक ही बैंक है जो दोनों काम बहुत ही बखूबी करता है. सर ये तो अब आपके किसी के मन में कोई जो प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए. उससे पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ प्रश्न. पिछले 30 सालों में, स्पेशली 30 सालों में एसबीआई के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कोर बैंकिंग करते हैं, एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो या ये जो बैंक्स है, ये बैंक इनका प्रोफेशनलिज्म के बावजूद भी एसबीआई इतने प्रोफेशनल होकर, जैसा इन्होंने कहा, हम 1000 का भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, जीरो बैलेंस भी अकाउंट मेंटेन करते हैं और मास के लिए हमारे हम सभी हो सकते हैं, एसबीआई के सभी हम अकाउंट होल्डर होंगे, लेकिन एसबीआई सभी से ऊपर रहा, इस मोस्ट कॉम्पिटिटिव बैंक रहा इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ऑल द क्राइसिस. तो मेरा प्रश्न ये है, इतना बड़ा बैंक को ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, ऐसे क्राइसिस में आपने उसको इतना अच्छा कैसे बनाया? एनालॉग टू डिजिटल कैसा बनाया? योनो कैसा इंट्रोड्यूस किया? और टिपिकल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इतना विश्वास कैसा दिलाया कि हमारा भी बैंक प्राइवेट से कम्पीट कर सकता है, वेदर एचबी वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड बैंक के जो दूसरे बैंक है, ये कैसा आपने किया? इसका मुझे लगता है कि और रिसर्च और एनालिसिस करने की ज़रूरत है वैसे तो, लेकिन जो स्टेट बैंक में, क्योंकि मैंने वहाँ पे 40 साल काम किया, तो जो लीडरशिप क्वालिटी रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिंस बिगनिंग, वो हमेशा स्टेट बैंक में अच्छी रही है और अच्छा टैलेंट ये अट्रैक्ट करने में सफल है. कोई भी संस्था हो, और जो कि सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीज़ें फ़र्क होती, सर्विसेज सेक्टर में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो पीपल. और 2.5 लाख लोग काम करते हैं स्टेट बैंक में, इतना बड़ा नेटवर्क है. और लीडरशिप लेवल पे हम लोग क्या सोचते हैं और ब्रांच में जो लास्ट माइल है वहाँ पे हमारे जो स्टाफ है वो क्या सोचता है, उसको कैसे अलाइन किया जाए, कैसे बैंक का विजन कम्युनिकेट किया जाए, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छे से हुआ. और स्टेट बैंक प्रिविलेज रहा है, क्योंकि इसका तो जो पहले चेयरमैन थे वो इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई थे. सो दैट इज़ द लीगेसी विच स्टेट बैंक हैज़ व्हेन इट कम्स टू दी लीडर्स. इट हैड ग्रेट लीडर्स लाइक आर के तलवार, जिनको आज बैंकिंग सेक्टर में अभी भी लोग याद करते हैं.
तो एक अच्छी लीडरशिप और एक अच्छा कल्चर, अच्छा डीएनए, और हमेशा से बहुत कॉम्पिटिटिव रहा है स्टेट बैंक, चाहे वो लिबरलाइजेशन से पहले भी था कंपटीशन, पहले केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में था, लेकिन 92 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ और उसके बाद न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नई टेक्नोलॉजी, नई ब्रांचेस, जब ये लोग आए तो उस समय लगा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो अस्तित्व है उसको एक खतरा है, लेकिन आई एम हैप्पी स्टेट बैंक rose to the occasion. Rest of the public sector banks did lot of catching up. लेकिन अगर आज आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी भी टॉप एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन किससे लगता है, तो वो स्टेट बैंक का ही नाम है। एंड एक अच्छा डीएनए ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है, एंड आई होप कि दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर। एंड जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, ये काफ़ी ओवर स्टेटेड होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, ये है, कुछ ऐसा भ्रम बना हुआ है, लेकिन आपको कोई काम करने से रोकता नहीं। या अगर स्टेट बैंक ने डिसाइड किया कि हमें डिजिटाइजेशन करना है और योनो पे हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये बोर्ड का कॉल था, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहीं हाँ या ना, या कोई जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे बोर्ड पे सेक्रेटरी होते हैं, तो पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग इज देयर। पर कोई आपको ये थोड़ी कहता है कि आप अगर डिजिटाइज कर रहे हो और आपको 500 करोड़ रुपए डिजिटाइजेशन पे खर्च करना है तो आप क्यों कर रहे हो। नोबडी क्वेश्चंस दैट। आपका खुद कन्विक्शन होना चाहिए जो बैंक को उस समय लीड कर रहे हैं, और जो बोल्ड है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर। और ये भी होता है हमेशा कि कई बार निर्णय गलत होते हैं और कई बार ठीक होते हैं, तो अगर आप यही डरते रहें कि गलत हो गया तो क्या होगा, फिर तो आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो जब तक आपकी कॉन्शियस क्लियर है, और जो हमारा जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो तो हमेशा यही रहा है कि कॉन्शियस क्लियर है, बैंक के लिए सोचता हूँ, बैंक के लिए करेंगे, डिसीजन गलत होगा सही होगा वो तो फिर बात की बात है, लेकिन कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन ने डिसाइड किया और हो गया, वो बड़ा इलाबोरेट प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कहे कि भाई गवर्नमेंट की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर रहे, वो तो बहुत ही गलत है। यू कैन परफॉर्म डिस्पाइट गवर्नमेंट। Which have guided the historic cities of India, and he has worked in most historic cities of India. There's a cross which is happening. I think that's a cross connection from our neighbors, Vagat. Yes, yes, sir. Please continue, sir. Yeah. So I think that answers your question about that how state bank gets differentiated. Okay. Any further questions? Yes. Okay. पहले यहाँ फिर उसके बाद पीछे वहाँ पे दो जेंटलमैन हैं, उनको पास कर दीजिएगा। इंडियन रुपी जो है अभी वो एक रिजर्व करेंसी कैसे बन सकते हैं, और जो अभी इंडिया ट्रैक पे है वो क्या होना चाहिए? देखिए, रिजर्व करेंसी बनना जो है अभी वो तो बहुत दूर है। लेट अस बी वेरी क्लियर। अगर आज डॉलर रिजर्व करेंसी है तो उसकी यूएस की इकोनॉमी का साइज और इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस का रोल, तो वो होना इतनी जल्दी संभव नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्डर को चेंज करना। अगर ऐसा होता तो चाइना की रेमनी जो है वो आपके रुपये से ज़्यादा पहला कैंडिडेट होती रिजर्व करेंसी बनने के लिए। तो अभी तो रुपये कन्वर्टेबल भी नहीं है। पहली कंडीशन तो किसी भी रिजर्व करेंसी की है कि इट शुड बी फुल्ली कन्वर्टेबल, और जब आप कन्वर्टेबल नहीं है तो आप रिजर्व करेंसी की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर प्रयास है गवर्नमेंट का कि जो बायलैटरल ट्रेड है, But I planners today actually go is because it is very scientific, Sure. because he was a वो scientist. हमारी वाइब्रेशंस बहुत फ्रेंडली So हैं। he knew about life इसीलिए। and how to support life. So his plans and हाँ, his right, absolutely. entire trip and thinking about नहीं पता नहीं। Indore, not just Indore, Yeah. other cities also. is रिजर्व करेंसी very- बनने में अभी जो भारत है, Like पहली बात जो अर्थव्यवस्था है उसको अभी कई गुना बड़ा होना। तो 2047 तक का जैसे लक्ष्य है कि हम 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, तो यूएस आज 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी।
और चाइना जो है 20 या 22 ट्रिलियन की इकनॉमी, अभी हम 3.5 ट्रिलियन की इकनॉमी। जो वर्ल्ड में हमारा ट्रेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो अभी 1-1.5% शेयर है। तो जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि रिजर्व करेंसी तो बनने का कोई संभावना अभी नहीं है। लेकिन रुपी ट्रेड को जिस तरह से रिजर्व बैंक और भारत सरकार प्रमोट कर रहे हैं, तो जो डॉलर है उस पर भारत की निर्भरता ट्रेड के लिए वो ज़रूर कम होगी, और हर एक देशों का ये इच्छा है कि डॉलर पर निर्भरता कम करी जाए। लेकिन अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी संभावना है कि डॉलर पे अभी डिपेंडेंस वर्ल्ड का कम होगा। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर जय जिनेंद्र, सर मेरे 2 निवेदन है, उसको आप शिकायत के रूप में ना लें कि स्टेट बैंक जो है वो हिंदुस्तान में अधिकांश पब्लिक गांव में रहती है और गांव का आज भी विश्वास स्टेट बैंक पर है। अब बहुत सारे सीनियर सिटीज़न हैं, कई बार बैंक में जाते हैं तो उनको थोड़ा परेशानी होती है, तो आपका कोई एक आध अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो सीनियर सिटीजन की समस्या वो हल कर सके। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जो बाहर आपके एटीएम मशीन लगी हुई है, कभी कभी टाइम के 15 मिनट पहले कोई भी पहुंचता है एटीएम उस मशीन में जमा करने, कई बार नोट वापस फेंक देती या नहीं लेती और वो अंदर बैंक में जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि आप बाहर जमा करिए। तो सर ये कि प्रॉब्लम है, अगर वो मशीन प्रॉब्लम करती है तो अंदर एक्सेप्ट करना चाहिए नोट। ये 2 रिक्वेस्ट है मेरी। दूसरा क्या है, कई आज भी हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग अपनाना चाहते हैं पर वो आप देखिए स्लिप भी नहीं भर पाते अपनी, तो वो जो आपका अधिकारी सीनियर सिटीजन के लिए है वो उनकी स्लिप भरने में भी अभी तो आम आदमी मदद कर देता है, पर वो जिम्मेदार, क्योंकि विश्वास है आपके बैंक के ऊपर, इसलिए निवेदन है मेरा आपसे कि आप आज मौजूद हैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ मैं, इसको शिकायत ना समझे आप। नहीं, शिकायत की बात नहीं है। मेरे आगे अभी एक्स लग चुका है, एक्स चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन और यहाँ के अधिकारियों में आपके सजेशन बिल्कुल उनको जो है अभी मैं यहाँ से निकल के व्हाट्सएप कर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, लास्ट क्वेश्चन, विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा वक्त कम है तो प्लीज सिंपल शॉट रखिएगा। हेलो सर, मैं एक्स एम्प्लॉई ही हूँ स्टेट बैंक का। मेरा सवाल ये, जो इजी लोन ऐप्स आ रहे हैं आजकल खासतौर से चाइना के, प्लस जो पीयर टू पीयर लेंडिंग का जो चल रहा है, तो क्या ये सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट कर रहा है मार्केट में, या जो ट्रेडिशनल जो क्रेडिट सिस्टम है क्या कहीं ना कहीं ये उसको ओवरटेक करने की या रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है? इसका थोड़ा सा कुछ बताइए प्लीज़। जो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस आ गए हैं और पर्टिकुलरली चाइनीज, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये रेगुलेटेड नहीं, और चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग हो या लोन देना, ऐसा नहीं है कि लोन दे रहे हैं तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिना रेगुलेशन के कोई भी फिनेंशियल एक्टिविटी होना वो खतरे से खाली नहीं है, और इसमें भले ही सिस्टमेटिक रिस्क न हो, लेकिन जो ज़ाती इन एप्लीकेशंस के द्वारा होती हैं कस्टमर के या पब्लिक की, जनरल पब्लिक की, तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो रिजर्व बैंक पे ही आती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन हो, अभी कोई इसमें कोई कानून या कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो अप्रूव्ड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। इतने हॉरिबल एग्जांपल्स जो है आए हैं जिसमें कि पैसा कलेक्ट करने के लिए पहले उनको बेवकूफ़ जिसको कहते हैं बनाना, और 100% का ब्याज लेना, और फिर 20,000 का लोन का रिकवर करने के लिए उनकी बेइज्जती करना। तो कौन रेगुलेट करेगा? रेगुलेट तो तभी करेंगे जबकि पता हो कि ये एक्टिविटी कनेक्ट कौन रहा है। तो इसलिए जो भी कदम आरबीआई इस समय उठा रहा है वो इसी चीज़ को दिमाग में रख के उठा रहा है। ऐसा कोई सिस्टमेटिक रिस्क उस सेंस में नहीं है कि इनकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो गई है तो कल क्या होगा देश की अर्थव्यवस्था का, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जो इस देश में लोग रहते हैं और जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जब बोरो करते हैं तो उनके अधिकारों को और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस एंगल से, और P2P में मुझे नहीं लगता कि रेगुलेटरी कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी रिस्क अगर देखा जाए तो कोई भी रिस्क कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लैंडिंग में जब भी लैंडिंग होती है, आप तो बैंकर हैं तो आप मेरी बात फ़ौरन समझ जाएंगे, तो उसके लिए रिस्क कैपिटल रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन P2P में क्योंकि रिस्क कैपिटल कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है,
तो इसलिए मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक इस प्रोडक्ट को कभी ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देगा. Thanks a lot, sir. Thank you so much to the gentleman. Yes. Anyone left? Okay, well. Acha. Okay. Last one, please. गुड आफ्टरनून सर. मेरा क्वेश्चन था कि आजकल जो क्रेडिट इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि लोग खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं तो वो लेजी पे और उससे कर रहे हैं, तो इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस कुछ मतलब सिखानी चाहिए. इंसान बहुत अननेसेसरी डेट ले रहा है जो उसको ज़रूरत भी नहीं है. Please introduce yourself as well. Your name? आई एम सूर्यकांत किलानी. आई एम रेसिडेंट ऑफ भोपाल ओनली. आई वर्क इन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. देखिए, जो मेरा अपना असेसमेंट है सिचुएशन का कि जो बैठ जाइए जो भारत का कंज्यूमर है वो अमेरिकन कंज्यूमर की तरह बिहेव करना शुरू कर. तो इट इज़ ऑल बाई नाउ पे लेटर. देयर वाज अ टाइम कि हमारे फादर तो घर ही नहीं बना पाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि लोन तो कभी लाइफ में लेना ही नहीं, तो वो रिटायर हो गए और जब तक उनकी सेविंग्स थी दे वर नॉट सफिशिएंट टू बाई इट. दोनों तरह से देखा जा सकता है. अगर आज It's a very pertinent question that you asked. That, and you know, Petri Geddes has तो actually इसका जो specified the buildable land. जो the लोग type of जो लोग building. लोन He has दे even रहे हैं given उन्हें हमेशा plans ये for ध्यान रखना free चाहिए कि for- ओवर लीवरेज even ना for हो. houses. लेकिन And आज he की has said संस्कृति और where you कल्चर can ऐसी है build, कि how much आपको you हर can सब build. चीज़ So आज he ही was चाहिए actually और designing लोन the अवेलेबल built-up है mass, तो the लोग ले. open mass, लेकिन and उससे together ऐसा नहीं है, with अर्थव्यवस्था डेवलप करने So में भी he had बहुत बड़ा addressed this issue. And if एक जो this भारत की issue अर्थव्यवस्था was डेवलप हो रही dealt है with, उससे we भी would have had जो क्रेडिट जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है तो वो एक जो एस्पिरेशनल क्लास है उसके एस्पिरेशंस पूरा करने में हेल्प तो मिलती है. of a planned city if it comes to a standstill because of bad air Shake, quality. shake, Delhi. shake. It comes to a standstill because of urban floods. Chennai, many places. What इसके is बाद the दूसरा use of a यही planned लाइन में city किताब लिखना if चाहेंगे. rivers do not get their own water and the city is under flood? लिखने के Ahmedabad. लिए So तो what is the use अभी of such सोच रहा हूँ कि planning? किस We subject have पे to लिखा introspect and और हम go जरूर back, चाहेंगे सर कि एक go ऐसी into सब्जेक्ट पे आप what किताब लिखें such ताकि इस people who have been बैंकर्स talking बहुत of कम किताब life लिखते and हैं और health ये and किताब well-being of the आप people जरूर must पढ़े. इसलिए relook नहीं at है, the ये planning किताब scheme. बहुत अद्भुत है. ये किताब में नोन अननोन जो अनटोल्ड जो आपको मालूम नहीं वो चीज़ बताई है. बैंकिंग कितना बृहद कितना बड़ा इसका व्याप रहता है, पूरे देश की इकोनॉमी का बैकबोन पीछे कैसा रहता है. जैसा अपनी इकोनॉमी ग्रो होएगी, भारत जब 5 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन डॉलर का जब होगा तब उसके पीछे इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहेगी. ये बिल्कुल किताब ये सामान्य व्यक्ति भी किताब पढ़ सकता है और एंजॉय कर सकता है, उससे उनको प्रेरणा जरूर मिलेगी. और Well, thank you so much, gentlemen. Please give it up for Rajnish ji, Ramesh ji, and Rajan ji, the RRR team of BLF. Thank you so much for being there. I would now sincerely like to invite Niharika ji, member of Society for Culture and Environment, to please come forward and as a token of respect and love from Bhopal Literature and Art Festival, we would like to present a memento to He is right, this our young fellow, that authors all and cities tend discussants. to look the same. If you try, And say, no, you are going let me from tell big you city to big, about but they something look about the this same. beautiful painting. Since BLF is a home So and lot heartland of work stories, is being done the mascot of in, BLF for 2024 identity is of inspired by the city. Asian tales Because identity developed by is the what you senior link most yourself Gond to. artist You Sri Ram yourself Singh love your Urveti ji. identity. You don't want to lose your And identity. this So every painting city reflects has a an motif identity rooted in which has to be timeless consciously stories. preserved. It depicts God amidst the sacred conserved. landscape of his Otherwise, every village. city will A round of applause, become the please. same. There would be a facelessness and nobody And likes to be with just besides Antarang, we have an author's signing desk. So any one of you who wants a signed copy of this wonderful book by Rajnish ji, so I'll be requesting him to please be there after this session. Author's signing desk and आप इनकी book, because of course इतना अच्छा मौका है उनसे रूबरू होने का, उनसे मिलने का.
तो वो बुक आप इनसे खुद ब खुद साइन करवा सकते हैं. और it's going to be a lunch break, but I want one promise for all of you कि after the lunch break you will be back here. So please do, we'll be resuming sessions at 3 p.m. Acha, but before anyone leaves, we also have a question to the audience because we have a book and we want to distribute it to someone who answers the question correctly. So please listen to it carefully. Recently एक फिल्म आई थी Oppenheimer. I'm sure आप सबने सुनी होगी. All the students and all the senior personalities. The question is, the famous quote of Robert Oppenheimer was inspired from which chapter and verse of what book? The dialogue was, "Now I become death, the destroyer of worlds." Anyone? Anyone? This dialogue of Oppenheimer, कौन सी बुक के कौन से वर्स कौन से चैप्टर से इंस्पायर्ड था? You can raise your hands. Yes sir. Please mic दे दीजिए सर को. कौन सी बुक के कौन से वर्स से वो कोट इंस्पायर्ड था? I want to ask this, you know, see, I love to give this example to my students of Berlin where a new project of higher Okay, so not the completely right answer, but partially right answer, and since no one else answered, मेरे ख्याल से sir gets a book of Sufi stories. They said, no, we will not have it. So the entire project had to be scrapped, redesigned, redone. प्रताप जी, मैं जाऊंगा प्रताप जी के लिए तालियां. Bhagavad Gita is the book. Do you know the verse? Came up and well, हमें पहले वो दिखे, but no worries. अभी और भी questions है, don't worry. We have more questions. Thank you so much, Pratap ji, for the right answer. And hoping to see you all back at 3 p.m. Till then, we have the lunch time. So काम पूजा के साथ थोड़ी पेट पूजा भी कर लीजिए. Thank you so much, everybody. See you at 3 p.m.